اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا گوہر المدد یا گوہر المدد یا گوہر المدد۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرکار گوہر شاہی اپنے پیر مرشد کے کرم سے یہ ویڈیو، یہ تعلیم اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کی خاطر۔ ہمارے سرکار، ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دل والے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کیول زبان والے ہیں، جن کے صرف زبانی کلام زبان پہ رہتی ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف اور صرف زبان والے ہیں، جن کے اوپر صرف زبانی کلام رہتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو دل والے بھی ہیں۔ تو سرکار میرے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے بیچ چند دل والی تعلیم بھی دے دی جائے۔ جو دل والے لوگ ہیں وہ دل والی تعلیم ان لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ تو ہمارے چینل، ہمارے ویڈیو کا سرکار کے کرم سے یہی مقصد ہے کہ جو دل والے ہیں ان دل والوں تک یہ دل والی تعلیم پہنچ سکے۔ ہمارے سرکار مرشد پاک سرکار گوہر شاہی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا، اور دو طرح کا علم بھی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو طرح کے لوگ تھے اور دو طرح کا علم بھی تھا۔ ایک علم جوان والوں کے لیے تھا جس علم کو علم شریعت بولتے ہیں، اور ایک علم دل والوں کے لیے تھا جس علم کو علم طریقت بولتے ہیں۔ اور سرکار میرے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ جوانی علم والے، جنہوں نے صرف زبان کا علم، کتابوں کا علم حاصل کیا، مدرسوں کا علم حاصل کیا، وہ جوانی علم والے وہ علماء بن گئے، اور جنہوں نے دل والا تعلیم حاصل کیا وہ ولی بن گئے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر گئے۔ جوانی علم والے وہ علماء بن گئے، عالم بن گئے، اور جنہوں نے دل والی تعلیم حاصل کی وہ ولی بن گئے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر گئے۔ آج کے زمانے میں جنہوں نے صرف ظاہری علم سیکھا، حاصل کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنہوں نے صرف ظاہری علم حاصل کیا، تو ایسے لوگ کوئی منافق ہو گیا، کوئی خارجین ہو گیا، خارج ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنہوں نے صرف ظاہری علم سیکھی، زبان کی علم سیکھی، ان میں سے کوئی منافق ہو گیا، کوئی خارج ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہوں نے دل والا علم بھی حاصل کیا وہ صحابی رسول کہلائے، اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ اور آج اس زمانے میں جو صرف ظاہری علم پہ قناعت کیے ہوئے ہیں، صرف مدرسوں کی اور اسکولوں کی اور ان کتابوں کی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ تو 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب وہ 72 فرقے جو بن گئے ہیں، وہ 72 فرقے کیسے بن گئے؟ ہر آدمی پریشان ہے، ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے نا، تب ہی تو جا کر دوسرے کے مسجدوں میں حملے کرتا ہے نا، دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے نا۔ تو سرکار فرماتے ہیں ہمارے پیر مرشد
کہ یہ فرقہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے جو ایک دوسرے کے مسجدوں پہ حملے کرے، ایک دوسرے کے لیے برا بھلا کہے، ایک دوسرے کو کھینچے، تو فرقہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ بھائی حقیقت میں کچھ اور چیز ہوگی نا جس سے یہ نکلے ہوئے ہیں نا، سنی بھی فرقہ، شیعہ بھی فرقہ، وہابی بھی فرقہ، دیوبندی بھی فرقہ، اہل حدیث اور بریلوی بھی فرقہ، تو پھر فرقہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اور ہر کوئی اپنے آپ کو مانتا ہے کہ میں صحیح ہوں، اور ہر کوئی ایک دوسرے کی برائی کرتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے مسجد پہ حملے کرتا ہے اور برائی کرتا ہے، تو یہ فرقہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ صحیح وہ ہے جس سے یہ لوگ نکلے ہوئے ہیں، صحیح وہ ہے جس سے یہ لوگ نکلے ہیں، صحیح وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی شیعہ سنی وہابی دیوبندی نہیں تھا، حضور پاک کے زمانے میں امتی تھا۔ اور امتی کس کو بولتے ہیں؟ جس میں اللہ کا نور ہوتا ہے وہ امتی ہوتا ہے نا۔ اور جب ان امتیوں میں سے وہ نور نکلتا گیا تو پھر شیعہ سنی وہابی دیوبندی بنتا گیا۔ اور اگر دوبارہ ان فرقوں میں نور آ جائے تو پھر کبھی نہیں کہے گا کہ میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، میں دیوبندی ہوں، بس تمہارا امتی ہوں یا رسول اللہ، یہی کہے گا۔ اب وہ امتی ہوتا کیسے ہے، امتی بنتا کیسے ہے؟ وہ امتی وہ ہے جس میں اللہ کا نور ہو، وہ امتی۔ اب اللہ کا نور اندر کیسے جائے گا؟ اب اللہ کا نور اندر کیسے جائے گا؟ سورۃ حجرات میں ہے کہ اس زمانے میں کچھ عربی جو تھے انہوں نے کہا کہ میں ایمان لے آیا، مومن بن گیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ حجرات میں کہ نہیں، ان سے کہو کہ یہ صرف مسلمان ہوئے، مومن تب بنو گے جب اللہ کا نور تمہارے دل میں اترے گا، امتی اس وقت بنو گے جب تمہارے دل میں نور جائے گا۔ اب دل میں نور کیسے جائے گا؟ سکھ مذہب کے لوگوں نے، ایک سکھ نے بولا کہ تمہارے اکابر کہتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں نور ہے، میں تمہارا جاسوس رہ کے آیا، 20-25 سال تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا آیا، نمازیں بھی پڑھاتا آیا، اگر اس میں نور ہوتا تو میں نوری کیوں نہیں ہوا؟ ایک عیسائی بولا کہ میں دن رات تمہارے قرآن کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں لیکن نوری میں بھی نہیں ہوا۔ تو ہم نے کہا کہ تم نے دل سے نہیں پڑھا، یہی کہہ سکتے تھے نا، یہی کہیں گے کہ بھائی تم نے دل سے نہیں پڑھا، یہی کہہ سکتے ہیں، اور کچھ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تم نے دل سے نہیں پڑھا ہوگا اس لیے نوری نہیں ہوئے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے دل سے نہیں پڑھا لیکن تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا، وہ نوری کیوں نہیں ہوئے؟ ہر فرقہ قرآن پڑھنے والا ہے نا، تو ہر فرقہ نوری کیوں نہیں ہوا؟ تو کیا اس قرآن میں نور نہیں ہے؟ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، قرآن میں نور ہے، یہ بات حق ہے، لیکن کسی کسی کو نور حاصل کرنے کا آتا ہے طریقہ۔ اس دنیا پہ غور کریں تو ہر گھر میں بجلی ہے، اگر ادھر کاغذ پہ الفاظ ہے تو ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں نور ہے۔ اب اس قرآن سے نور کیسے پایا جا سکتا ہے؟ جس طرح پانی پانی سے ٹکراتا ہے تو بجلی بنتی ہے، لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے تو چنگاری اٹھتی ہے، اسی طرح جب قرآن کی آیتیں جب آیتوں سے ٹکراتی ہے
तो नूर बनती है ना। कुरान की आयतें जब आयतों से टकराती है तो नूर बनती है। क्या आप लोगों ने कभी आयतों को आयतों से टकराया? कभी नहीं। जिन लोगों ने टकराया वो सूरत मुजम्मिल की आयत है ना, तो वो सूरत मुजम्मिल की आयतों को बार बार टकराता है, बार बार टकराता है। और इस तरह बार बार टकराने की वजह से उसकी जुबान में नूर आता है ना। और जब नूर आ जाती है तो फिर जो उसकी मखलूक है उस मखलूक के काम आती है वो नूर। अब बहुत से लोग तस्बीह के जरिए नूर हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो तस्बीह की टिक टिक है, इस तस्बीह की टिक टिक के बगैर भी तो अल्लाह अल्लाह कर सकते हैं। इस टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह क्यों करते हैं? जब इस तस्बीह के टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह का टकराव होता है तो फिर नूर बनता है। लेकिन इन तस्बीहों को घुमाने वालों, इन टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह मिलाने वालों को भी पता ना कि नूर कैसे बनता है। जब इस तस्बीह के टिक टिक के साथ 101 दफा अल्लाह अल्लाह का टकराव होता है और मुसलसल अल्लाह अल्लाह का टकराव जब हो तो मामूली सी नूर की एक चिंगारी बनती है। और हमारे माशरे के लोग 10-15 दफा अल्लाह अल्लाह तस्बीह के टिक टिक के साथ करते हैं और फिर बस पूछते हैं भाई क्या हाल है, सब खैरियत है। इस तरह क्या हुआ कि उस तस्बीह से बनने वाला जो नूर था, जो बनना चाहिए था, जो मुसलसल टकराव करने से बनता, तो वो तो टूट गया ना। यानी कि जो उसका कोर्स है कि इतनी दफा टकराव होगा तो एक मामूली सी नूर की चिंगारी बनेगी, तो वो कोर्स तो टूट गया ना, वो पूरा हो नहीं पाया ना। इससे बेहतर तो ये होता कि तू बगैर उस तस्बीह के, बगैर हाथों को थकाने के तू अल्लाह अल्लाह करता रहता ना। बगैर उस तस्बीह के, बगैर हाथों को थकाने के तू अल्लाह अल्लाह करता रहता, उससे बेहतर था ना। अब जो तस्बीहों पे टकराव रब के नाम का करने से जो नूर बनता है, तो वो नूर वो भी अंदर जाता है नहीं है ना, वो नूर भी तुम्हारे अंदर नहीं जाता है ना। लेकिन वहां तो शर्त है कि जिसके दिल में नूर होगा वो कामयाब होगा, जिसके दिल में नूर होगा। तो शर्त है ये रब ताला की यहाँ कि जिसके दिल में नूर होगा वो ही कामयाब होगा। ये उंगली से पढ़ने वाला भी मुसलमान है, जुबान से पढ़ने वाला भी मुसलमान है, और वो जो सांस के जरिए पढ़ते हैं वो भी मुसलमान है, और जो खफी वाले हैं, जो जिक्र खफी करते हैं वो भी मुसलमान हैं। तो ये सारे जो हैं जिनको मैंने बताया ये सब मुसलमान हुए। उंगली से पढ़ने वाला मुसलमान, जुबान से पढ़ने वाला मुसलमान, सांस के जरिए भी पढ़ने वाला जो है वो भी मुसलमान, यहाँ तक कि जो खफी वाले हैं वो भी मुसलमान। इसके आगे से फिर उम्मत शुरू होती है। हमारे सरकार फरमाते हैं कि इसके आगे से उम्मत शुरू होती है। इसके आगे से उम्मत किस तरह शुरू होती है? जिस तरह ये तस्बीह टिक टिक करती है उसी तरह तेरे अंदर भी एक टिक टिक होती है, और हर वक्त वो टिक टिक हो रही है। जिस तरह ये तस्बीह टिक टिक करती है उसी तरह तेरे अंदर भी टिक टिक होती है और हर वक्त हो रही है। सिर्फ फर्क ये है कि ये तेरे जवान का ताल्लुक उस तस्बीह से है जो बाजार में बिकती है, और वो जो तेरे अंदर टिक टिक हो रही है, हर वक्त होती रहती है, उस टिक टिक का ताल्लुक किसी और मखलूक से है जो तेरे अंदर ही है। वो मखलूक, उस टिक टिक का ताल्लुक किसी और मखलूक से है और वो मखलूक तेरे अंदर ही है। तो वो मखलूक तेरे अंदर ही है और तुझे सबसे पहले उस मखलूक को जगाना होगा, उस मखलूक को जगाना होगा। जब ये जिस्म बनाया गया, ये इंसानी जिस्म जब बनाया गया तो उसमें सबसे पहले रूह डाली गई, और उस रूह के साथ बाकी और मखलूक भी डाली गई। बाकायदा उन मखलूकों की
नाम है, बाकायदा उन मखलूकों के नाम है। बाकायदा हदीस शरीफ में उन मखलूकों के नाम है हदीस शरीफ में, और उसे लताइफ कहा जाता है। लतीफ़ा कल्ब, लतीफ़ा सिर्री, लतीफ़ा अख्फा, लतीफ़ा खफी, लतीफ़ा अना, लतीफ़ा नफ्स, ये सब बाकायदा नाम है हदीस शरीफ में। और इन मखलूकों का काम क्या है? इसे लताइफ कहते हैं। और इस लताइफ का काम क्या है इंसानी जिस्म में? किसी का काम देखने के लिए है, किसी का काम सोचने के लिए, किसी का काम सुनने के लिए, किसी का काम बोलने के लिए है। इन लताइफों का ये काम है इंसान के अंदर। और किसी मखलूक का काम चलने के लिए, पैर हाथ चलाने के लिए, लेकिन एक मखलूक का काम जो है, उसमें एक मखलूक ऐसा है जो उसका काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने के लिए है, अल्लाह का जिक्र करने के लिए है। अब वो मखलूके इस जिस्म में बंद है। अगर कोई शख्स अंडे की खासियत से बेखबर हो, उस शख्स से कहा जाए कि ये अंडा हवा में उड़ेगा और ये चूं चूं करेगा, तो वो शख्स कहेगा कि तू गलत कहता है, ना इसकी टांगे हैं, ना जुबां है, ना पर है, कुछ भी नहीं, और तू कहता है कि हवा में उड़ेगा और चूं चूं करेगा। उसका नाम बेजा है, और सूफी लोग उसको बेजाए नाशूती कहते हैं। उसके ऊपर 3 छिलके हैं, उस मुर्गी के अंडे के ऊपर 3 छिलके हैं, और इस कल्ब के ऊपर 1,80,000 जाले हैं। उस अंडे को जाहिरी गर्मी की जरूरत है, और इस लताइफ को, लतीफ़ा कल्ब को अल्लाह के जरबों की जरूरत है। उस अंडे को मुर्गी चाहिए उसको गर्मी देने के लिए, और इस लतीफ़ा कल्ब को बेदार करने के लिए, अल्लाह के जरबों में इसे लगाने के लिए इसको मुर्शिद चाहिए, मुर्शिद चाहिए, मुर्शिदे कामिल चाहिए। मुर्गी क्या करेगी? उसको हिसाब से उस अंडे को गर्मी पहुंचाएगी ना। और मुर्शिदे कामिल क्या करेगा कि उस बंदे के सीने के हिसाब से, उस बंदे के सीने के अंदर अल्लाह का नूर पहुंचाएगा ना। अब जब वो अंडा फटेगा मुर्गी के गर्मी देने से, तो फिर वो अंडे से जो फट के जो निकलेगा बच्चा, तो बगैर सीखे सिखाए वो चूं चूं करेगा ना, क्योंकि चूं चूं उसकी फितरत है ना। किसी ने उसको सिखाया तो नहीं ना, चूं चूं करना उसकी फितरत है, किसी ने उसे सिखाया तो नहीं ना। और जब एक इंसान के कल्ब ये बेजा फटेगा, तो ये बगैर सीखे सिखाए अल्लाह अल्लाह करेगा ना। अल्लाह अल्लाह इसकी फितरत है, अल्लाह अल्लाह करना इसकी फितरत है, तो ये बगैर सीखे सिखाए अल्लाह अल्लाह करेगा। अब तुमने कहा कि तेरी तस्बीह वो है, तुम नहीं कह रहे, तुम्हारे अंदर जो मखलूक जाग उठी ना, वो अल्लाह अल्लाह कह रही है ना। तो अब तुमने कहा कि तेरी तस्बीह ये है, इसके साथ अल्लाह अल्लाह मिला, तो फिर क्या होगा कि उसके साथ अल्लाह अल्लाह मिलना शुरू हो जाएगी ना। और दिल की धड़कन के साथ जब रगड़ा लग गया रब के नाम के जिक्र का, तो फिर नूर बनना शुरू होगा ना। और जब वो नूर बनना शुरू हो जाएगा ना, तो वो नूर बाहर नहीं गया, उंगली में नहीं गया, वो नूर सीधा तुम्हारे खून में गया। और जब खून में गया तो खून से फिर वो नसों में चला गया, और नसों से फिर वो नूर तुम्हारी रूहों तक पहुंच गया ना। और जब वो नूर तुम्हारी रूहों तक पहुंच गया, तो तुम्हारी रूहें भी अल्लाह अल्लाह पुकारना शुरू कर देगी ना। तो फिर आगे क्या होगा कि फिर तुम मर भी गए, कब्र में चले भी गए, तो भी अल्लाह अल्लाह होती रहेगी। और जिनके कल्ब में अल्लाह अल्लाह जारी हो गया, जिनके रूह में अल्लाह अल्लाह जारी हो गया, तो कुछ ऐसे लोगों ने हमारे पीर मुर्शिद सरकार गौहर शाही से कहा कि खुदा की कसम, हम बाबाओं के मजार पे जाते हैं, दरगाहों पे जाते हैं, तो उन मजार से अल्लाह अल्लाह की सदाएं आती है, अल्लाह के जिक्र की आवाज आती है।
तो कब्र में जाएगा तो वहां भी अल्लाह अल्लाह, और यौम महशर में जाएगा तो वहां भी अल्लाह अल्लाह। और अगर यकीन जानो तुम्हारे अंदर जब ये अल्लाह अल्लाह जारी हो गया ना, तो फिर तुम किसी भी बाबा के मजार पे, किसी भी हजरत, किसी भी वली अल्लाह के मजार पे चले जाना और वहां जाके बैठ जाना। अगर वो वली अल्लाह सच्चे हैं, अगर वो हकीकत में अल्लाह के वली हैं, तो फिर उस कब्र से तुम्हें सदाए रब के नाम की जिक्र सुनने को मिलेगी। तो वहां भी कब्र से अल्लाह अल्लाह तुमको सुनने की मिलेगी और तुम्हारे अंदर भी अल्लाह अल्लाह चलेगा। ये पहचान है। तुमको किसी भी कब्र वाले को पहचानना है कि ये हकीकत में वली अल्लाह है या नहीं है, तो वहां बैठ जाना। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह अल्लाह चल रही है, तभी तुम सुन पाओगे, तभी तुम उस कब्र से आवाज महसूस तुम्हें हो पाएगी। लेकिन तुम अगर जिक्र लिए हुए हो, जिक्र की इजाजत तुम्हें मिली हुई है और तुम्हारे दिल की धड़कनों में अल्लाह अल्लाह जारी हो गया है, फिर तुम किसी भी कब्र वाले के पास जाना, बैठ जाना, फिर वहां से भी तुम्हें अल्लाह अल्लाह की सदाएं मिलेगी। वो इसलिए कि वहां कब्र में भी अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे अंदर भी अल्लाह अल्लाह। जिस तरह एक चोर को पहचान लेता है, एक मिसाल दे रहा हूं, जिस तरह एक चोर को पहचान लेता है, उसी तरह एक अल्लाह वाला, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली एक वली को पहचानता है। इसी तरह एक जाकिरे कल्बी दूसरा जाकिरे कल्बी को पहचान लेता है, क्योंकि इधर भी अल्लाह अल्लाह और उधर भी अल्लाह अल्लाह। ये अल्लाह अल्लाह की सदाएं तुम्हें पहचान करवाएगी, अल्लाह अल्लाह की जिक्र तुम्हें पहचान करवाएगी। ये तुम्हारे लिए कसौटी है। तो अपने रब के नाम के जिक्र की इजाजत तलब करें और कसरत से जिक्र करें। तस्बीहों से कसरत नहीं है, कसरत इन दिल के टिक-टिकों से है, दिल के धड़कनों से है। तस्बीहों से कसरत कभी नहीं हो सकती। तो कसरत से जिक्र करना है, अपने रब को राजी करना है, उसका दोस्त बनना है, हुजूर के कदमों में पहुंचना है। तो अपने दिल का इंतखाब करें और अपने लिए मुर्शिद कामिल ढूंढें। हमारे सरकार गौहर शाही से राब्ता करें और अपने कल्ब को जिंदा करें और जिक्र की इजाजत तलब करें, हासिल करें।